ایک زمانہ یہ تھا کہ جب جو لوگ طاقتور ہوتے تھے نا جسمانی طور پہ، فزیکل انٹیلیجنس وہ زمانہ تھا. اس کے بعد تھوڑی ترقی ہو گئی تو ایموشنل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آج کل کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ عقل مند آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی جان سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا. ایک تیسری ڈائمینشن ہے کیا، کیسے، کیوں، میں کیوں ہوں، میرا پرپز کیا ہے. پیسے کی دوڑ میں لوگ پاگل ہونے کی حد تک ہو گئے ہیں. چائلڈہڈ ڈپریشن، چائلڈہڈ انزائٹیز، اس طرح کی بیماریاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم نے اپنے انسان ہونے کو بچانا ہے تو جتنی اسپرچویلٹی کی اب ضرورت ہے، جتنی فلسفی کی اب ضرورت ہے، جتنی ڈیپ ڈاؤن اپنے اندر محنت کرنے کی اب ضرورت ہے، اتنی شاید پہلے کبھی. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس کی وجہ سے وقت بچنا شروع ہو گیا؟ زیادہ الجھ گئے اس کے اندر. کتنا وقت ہے جو ہم ایکچولی اس کی وجہ سے ضائع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے ایک دوست ہیں وہ الکوہولک ہیں. وہ کہتے ہیں یار شراب میں نا روزانہ پی جاتی ہے مجھ سے، اگر نہ پینا تو مجھے نیند نہیں آتی. وہ بس کہتا ہے یار کوئی ایسی مجھے طریقہ بتاؤ کہ مجھے کریونگ کم ہو. اس کا کوئی ہے سولوشن آپ کے پاس؟ جو چیز آپ تقریباً 40 دن کریں نا، 40 دن ٹھیک ہے، تو آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. کئی سالوں سے یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، کوئی آپ کو اس میں کچھ چینج نظر آیا ہے؟ کوئی بگ چیز نظر آئی ہے؟ بہت. اگر ہم اپنے بچوں کا بچپن خراب کر دیں تو وہ ہمارا بڑھاپا خراب کرے. آپ کے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ جو ہے نا، وہ آپ کے اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ جو ماں ہے، باپ ہے، ایون دادی ہے، دادی تو ڈراموں میں مصروف ہے، باپ اپنے میسیجز میں اور اپنے آفس کی، ماں ریلوں میں مصروف ہے، وہ بھی ڈراموں میں مصروف ہے. بچہ رو رہا ہے تو بچے کو کہتے ہیں یار یہ موبائل بھی پڑھاؤ کہ اپنی جان چھوڑو. کہ بچے کو تو ابو امی چاہیے. اگر آپ اس کو ابو امی نہیں دیں گے تو وہ اس کو اپنا ابو امی بنا لے گا. عادات کو ہٹانے کا طریقہ اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر ہے ہی نہیں. صحیح ہے. میں نے خود ایک طریقہ نکالا ہے، جاوید's میتھڈ آف کنٹینیوس موٹیویشن ٹو چینج اے ہیبٹ. وہ یہ طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مجھے یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یو کے کا ٹور کیا 10 دنوں کا، اور وہ میری زندگی کی بیسٹ لرننگ تھی. لیکن اسکالر کے ساتھ جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو 4-5 طریقے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. ایک تو آپ ان کے لیکچر سنتے ہیں، پھر کتابیں پڑھتے ہیں، پھر کہیں ان کی آپ ٹاک سنتے ہیں. لیکن میں نے یہ اب تک دیکھا ہے جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ سفر کرتے ہیں تب اس کے میکسیمم پہلو کھل کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اور میرے لیے وہ 10 دن جو تھے، آج بھی میں اگر یاد کرتا ہوں تو میری زندگی کے لرننگ کے حوالے سے وہ 10 بیسٹ ڈیز جو ہیں وہ گزرے ہیں. موضوعات بہت ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت سارے موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جوید اقبال صاحب میرے آج کے گیسٹ ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ جب جو لوگ طاقتور ہوتے تھے نا جسمانی طور پہ، اس کو آپ سمجھ لیں کہ فزیکل انٹیلیجنس وہ زمانہ تھا. اس کے بعد تھوڑی ترقی ہو گئی تو سائنسدانوں نے کہا نہیں، جو مینٹلی طور پہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر انسان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی ترقی ہوئی تو ایموشنل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ دیکھیے، جب زمانہ تبدیل ہوتا ہے جی تو جو پہلے کی جہت ہوتی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. جیسے آپ نے چوتھی سیڑھی پر ہے نا، تو چوتھی سیڑھی ہوا میں نہیں ہوتی، وہ پہلی سیڑھی پر چڑھ کے پھر آپ دوسری سیڑھی پہ، تیسری اور چوتھی پہ آپ چلتے ہیں. صحیح. یہ علم کے بارے میں بھی، شعور کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے. مطلب اس بات کا بہت امکان ہے کہ جتنا سقراط کو آتا تھا نا علم، آپ کا بیٹا جو 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے اس کو سقراط سے زیادہ ایکوریٹ علم اس کے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے. لیکن سقراط کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا آج کا بھی کوئی عالم بڑا، اس لیے کہ سقراط نے وہ بیس فراہم کی جس بیس پر پھر شعور نے آگے ترقی کی. تو اس لیے جب ہم انسان کو، جیسے آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے یہ آگاہ کیا ہمیں کہ انسان کی زندگی کی ایک فزیکل جہت ہے، ایک اس کی انٹلیکچوئل جہت ہے، ایک اس کی ایموشنل جہت ہے. اور ہم یہی سمجھتے رہے شروع میں کہ علم کا مطلب ہے جاننا. جتنا ہمیں پتہ لگ گیا، جتنا زیادہ ہمیں، جیسے سقراط کو کا میں نے ذکر کیا، سقراط کو سب کچھ پتہ تھا. آپ خدا کے بارے میں پوچھیں تب بھی سقراط بتا دے گا آپ کو. آپ سقراط نے یہ کہا کہ عورتوں کے منہ میں 28 دانت ہوتے ہیں جی، جبکہ مردوں کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سقراط صاحب کی 2 بیگمیں تھیں. انہوں نے سینئر مسز سقراط یا جونیئر مسز سقراط کسی کا منہ کھلوا کے گنے نہیں، اور لوگ سینکڑوں سال تک یہی سمجھتے رہے کہ سقراط نے کہا تھا تو عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں. تو یعنی جاننے والا جو جاننے والا ہے نا وہ سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب علم کی اور راہیں کھلیں اور علم کے پردے ہٹے، انسان نے کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پر سوال کرنا، تشکیک کرنا، پھر اس کو ویریفائی کرنا سیکھا، تو انسان کو یہ پتہ لگا کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم خود کیا ہیں، انسان کیا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اس علم کو ایکچولی کہتے ہیں ایپسٹمالوجی.
एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये होता है कि नॉलेज की कंटेंट क्या है वो और चीज है। नॉलेज का कंटेंट है कि न्यूटन के 3 लॉ हैं, फलां है, ग्रेविटी है, ये तो है ना कंटेंट ऑफ द नॉलेज। लेकिन नॉलेज को हम समझते क्या है, इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। हमारे नजदीक नॉलेज क्या है, इस मुश्किल बात को मैं आसान इस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि आपके नज़दीक रियलिटी क्या है, मेरे नज़दीक रियलिटी क्या है, ये बच्चे जो कैमरे के पीछे खड़े हैं इनके नज़दीक रियलिटी क्या है, ये इस पर नहीं डिपेंड करता कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है। सही। वो इस पर डिपेंड करता है कि नॉलेज के बारे में इनका लेंस क्या है। इसलिए ये बहस है कि एब्सोल्यूट सच है भी या कोई नहीं है, क्योंकि हर शख्स का सच को परसीव करने का लेंस पे डिपेंड करता है कि वो सच क्या है। ठीक है। तो इस बुनियाद पर जब आहिस्ता आहिस्ता शऊर ने तरक्की की तो ये हमें पता चलना शुरू हुआ कि कोई हतमी बात हमें पता ही नहीं है। जिसको हम आजकल देखें ना, शुरू में थी पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब ये था सही या गलत, है या नहीं है, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जिसका मतलब या हाँ होता है या ना होता है, दरमियान की कोई चीज नहीं होती। और दुनिया इसी पर ही रही, या है या नहीं है। ये बारिश देवता बरसाता है, बस यही बरसाता है। इस देवता को कुर्बानी चाहिए, अपनी बेटी के हर साल एक खूबसूरत लड़की का गला काट दो, वो देवता खुश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एब्सोल्यूट हाँ या ना। पॉजिटिविज्म के बाद फिर एक जमाना आया पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसको हम रिलेटिविज्म भी कहते हैं। रिलेटिविज्म में ये था कि नहीं, चीजें अपने माहियत में यस और नो नहीं है, चीजें रिलेटिव टू ईच अदर यस और नो है। लिहाजा आप खूबसूरत हैं अगर तो इसका मतलब है कि आप मुझसे खूबसूरत हैं। कोई आपसे भी खूबसूरत होगा तो क्या आप उसके लिए बदसूरत होंगे? तो इसका मतलब है आपकी खूबसूरती को एब्सोल्यूट नहीं कहा जा सकता। आप मुझसे खूबसूरत हैं, किसी से बदसूरत हैं। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये रिलेटिविज्म का जब जमाना आया ना, इसने फिर रिसर्च को बुनियाद दिया। क्योंकि जब चीजें रिलेटिव होती है ना तो उनकी रेशो को अदद में कैलकुलेट किया जा सकता है, परसेंटेज में किया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है, उसमें फॉर्मूला लग सकता है। और ये जितनी रिसर्च हुई इस रिलेटिविज्म की पेट में से निकली। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जो जमाना आया वो जमाना है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब यह कि चूंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, जब कुछ ऐसी ऐसी चीजें पता लगी, खास तौर पे जब क्वांटम फिजिक्स आई और हमें हर चीज के अंदर एक क्वांटम कॉन्सेप्ट आया, तो हमें पता लगा कि अब तक हम ये बातें शकील तो नहीं हो रही ज्यादा? नहीं, बहुत अच्छी है। कि हमें ये पता लगा कि यार जो कुछ हम इस दुनिया में परसीव कर रहे थे, उसके परसीव करने की वजह ही ये थी कि हम टाइम और स्पेस में ओरिएंटेड हैं। बिल्कुल सही। देखना, आज से 7 साल पहले हम इकट्ठे इंग्लैंड गए थे, वो पास्ट है। हम अब दोबारा प्रोग्राम बना रहे हैं अमेरिका जाने का इकट्ठे, ये फ्यूचर है। इस टाइम स्केल में हम चीजों को परसीव कर रहे हैं। ये टाइम है और ये है, पहले हम बहावलपुर में थे, अभी हम लाहौर में बैठे हैं, फिर हम ह्यूस्टन में होंगे, फिर ये टाइम। जब हमें ये पता चला कि टाइम एंड स्पेस से बाहर भी एक पूरी की पूरी डायमेंशन है जो टाइम और स्पेस से अलग है, और जो टाइम और स्पेस है वो एक्चुअली जब आप उस डायमेंशन से बाहर निकल जाते हैं तो वो टाइम और स्पेस एक स्टैटिक फेज में खड़ा है। सही है। यानी जो चीज हो चुकी है वो एक्चुअली हो रही है, और जो हो रही है वही है जो होगी, और जो होगी वो एक्चुअली हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये कुछ नहीं है। ये एक तस्वीर, मेरा एक शेर है। हाँ जी। एक तस्वीर है ये सारा जहां, गर्दशे माहो साल धोखा है। अच्छा, जब ये हमें पता लगा, अब इंसान इस बात पर, अब अक्लमंद आदमी को समझना चाहिए कि भाईजान सबसे अहम बात यह है कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सही। और जब हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, इसका मतलब है कि जब तक हम उस डायमेंशन में नहीं जाएंगे जो टाइम और स्पेस से बाहर है, तो हम एक्चुअली चीजों के बारे में सिर्फ प्रैग्मेटिक हो सकते हैं। इस वक्त सर्दी है, इस वक्त गर्मी है, इस वक्त, ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट से, एक बंदे को बुखार चढ़ा हुआ है ना, वो कहेगा सर्दी लग रही है, सर्दी, दूसरा कहता है यार पंखा चलाओ इतनी गर्मी लग रही है। तो ये रिलेटिव है। तो अब मैं आपके उस सवाल के जवाब में आता हूं। इस वक्त जिस डायमेंशन में इंसान को होने की जरूरत, आपने बताया ना कि एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, एक इमोशनल डायमेंशन, इन चीजों के होते हुए अब जिस डायमेंशन की जरूरत है उसका नाम है स्पिरिचुअल डायमेंशन। अच्छा। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है, अगर आप साइंस की टर्मिनोलॉजी में बात करें, कि हम सब क्या और कैसे के जवाब तलाश करते रहे हैं अब तक। क्या और कैसे। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये क्या है, कैसे, ये है ग्रेविटी है, जो कुछ है। अब एक तीसरी डायमेंशन है, क्या,
कैसे क्यों। ओके, तो जो क्यों का जवाब है ना, अब जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बात करनी है, मैं क्यों हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्यों सांस ले रहा हूं, इसलिए अब इंसान की ग्रोथ इस क्यों की डायमेंशन में होनी जरूरी है। और ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का डोमेन है। एक बहुत सिंपल वर्ड में अगर हर चीज की आप वजह को जानने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली आप उसकी फिजिकल डायमेंशन से निकलकर उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशन में चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, वैसे इन मौजूआत पे तो फ़िरौन के ज़माने में भी गुफ्तगू होती रही है, और इसमें बुद्धा के ज़माने में बहुत बात हुई इस मौजू पे। उसके बाद जब योगीज़ जो हैं वो योगा किया करते थे, वो भी यही कहते थे कि आप ख़ुद को जानें, पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढें, वाई वी आर हेयर, हु इज़ द गॉड, उसका हमारे पास पर्पस क्या है। तो आज के दौर में ऐसा नया क्या है? आज के दौर में इसकी ज़रूरत इसलिए बढ़ गई है कि बीच में एक पॉज आ गया। ज़रूरत बढ़ गई है। अच्छा, पॉज आ गया ना बीच में, उस सारे जर्नी में जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी था, उस जर्नी में एकदम वेस्ट के अंदर एक रिलेटिविज्म की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बूस्ट आ गया। ठीक है। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का बूस्ट आ गया, बहुत से परतों से यानी हटा, तो इंसान ने मटेरियल की वैल्यू को तलाश करना शुरू कर दिया। ठीक है। और उसने देखा कि मटेरियल के ज्यादा होने से, मटेरियल साइंसेस की तरक्की की वजह से हमारे इर्द गिर्द की जिंदगी जो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। सही है। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, आज से 20 साल पहले यहाँ एक खेत होगा, यहाँ एक कच्चा घर होगा जिसमें एक आदमी बैठा हुआ आराम से अपनी गाय भैंसे चरा रहा होगा। लेकिन उसके मुकाबले में इतना बड़ा स्ट्रक्चर ह्यूज यहाँ खड़ा हो गया है। इसी तरह का पूरी दुनिया में मैकेनिक्स के अंदर, मोटर के अंदर, जहाजों के अंदर एकदम पूरा का पूरा एक मटेरियल दुनिया इकट्ठी हो गई। और सब ने ये सोचा कि एक्चुअली अहम चीज जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की वजह से इंसान ने जो मेहनत अपने अंदर करनी थी ना, वो अपने बाहर करनी शुरू कर दी। देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो तब होगा ना कि इस कमरे में ये लकड़ी की पैनलिंग हुई। जी। स्टैंडर्ड तो तब होगा ना कि जब ये एयर कंडीशनर चलेगा, जब ये वाली टेक्नोलॉजी सारी होगी। तो इसके लिए इंसान ने, अब वक्त तो उतना ही 24 घंटे है, तो इंसान के इज्तिमाई शऊर ने पिछले कोई 200-300-4 साल में वो जो सफर अच्छा चल रहा था उसमें एक्चुअली एक ब्रेक आ गई। ओके। और इंसान एक मटीरियलिस्टिक ग्रोथ में पहुंचा। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा था कि इस मटीरियल, लेकिन ये ग्रोथ अब एआई के आने के बाद अब अपने हाथों से निकलती जा रही है। अब तक इंसान ये समझ रहा था कि मैं अपने इर्द गिर्द आसानियां इकट्ठी करके अपने आप को आसान कर लूंगा। जब मैं अपने आप को आसान कर लूंगा तो मेरे पास टाइम स्पेयर होगा बहुत ज्यादा, जिससे मैं फिर बड़ा काम कर सकूंगा। मगर इसकी नौबत आने से पहले ही पहले इस बड़ेपन ने इस इंसान से इंसानियत छीनना शुरू कर दी है। मैंने आज ही अपनी वीडियो में एक रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने आपसे अर्ज किया है कि मैं आपको ना डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि अब तक हम कहते थे कि भाई हम अपनी सेहत को हम खराब ना कहीं कर लें, देखो ना ज्यादा काम करके हम अपने रिश्तों को। अब वो वक्त आ गया है कि हमारा इंसान होना हमारे हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा, शऊर के उस डायरेक्शन में बढ़ने से जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंस को ही हम अपना सब कुछ समझ रहे हैं। तो अब आप देखिए ना कि अब इंसान, अभी आप देख लें अपने घरों में हमारे रिश्तों की डायमेंशन खराब हो चुकी है। ठीक है। हमारे जो रिश्ते और कनेक्शन, इनके दरमियान हमें पता नहीं है। पैसे की दौड़ में लोग पागल होने की हद तक हो गए हैं। चाइल्डहुड डिप्रेशन, चाइल्डहुड एंजाइटीज, इस तरह की बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं। माशरे के अंदर जो नेचर के साथ एक ताल्लुक की वजह से इंसान एक ब्लिसफुल कैफियत में रहता था, वो एक हिजानी कैफियत में तब्दील हो गई है। तो इसलिए वो जो सफ़र, आपके सवाल का जवाब ये है कि अब ये इस वक्त लिहाजा अगर हमने अपने इंसान होने को बचाना है तो जितनी स्पिरिचुअलिटी की अब ज़रूरत है, जितनी फिलॉसफी की अब ज़रूरत है, जितनी डीप डाउन अपने अंदर मेहनत करने की अब ज़रूरत है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें जैसे पहले ऊँटों पे सफ़र होता था, लोग, गाड़ी आ गई, लोगों ने कहा कि मेरी गाड़ी आएगी तो मैं इजी हो जाऊंगा। उसके बाद फिर गाड़ी के बाद फिर जहाज़ भी आ गए और स्पीड से सफ़र शुरू हो गया। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो टाइम इंसान ने बचाना था, क्या वो उसका टाइम बचा? क्या वो इन चीज़ों में ज़्यादा उलझ गया? जी देखिए, हम ख़त लिखने में कितनी देर लगती थी, फिर ख़त के पहुंचने में कितनी देर लगती थी, फिर जवाब आने में कितनी देर लगती थी। देखे ना, मैं इस्लामाबाद रहते थे हम, मैं मुल्तान आता था तो अब्बा जी कहते जाते ही कार्ड मुझे दे दिया था, कार्ड के ऊपर मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, उसके लिख के ना, तो जाते ही नहीं, तुम स्टेशन से ही ना डाकखाने में डाल देना। वो 4 दिन के बाद वहां पहुंचेगा तो मेरे अब्बू को पता चलेगा कि बेटा मेरा मुल्तान पहुंच गया। ये था ना। तो हमने कहा कि हम वक्त बचाएं जी, और ये मोबाइल स्मार्टफोन आया है, इसके जरिए से हमारा वक्त बचेगा। मैंने कहा रीच्ड, थैंक्स गॉड जी। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं
क्या इसकी वजह से वक्त बचना शुरू हो गया? ज्यादा उलझ गए इसके अंदर। कितना वक्त है जो हम एक्चुअली इसकी वजह से जाया करते हैं, इसी में लगा देते हैं, इसी में लगा देते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए प्लीज आप याद रखिए, जितनी भी टेक्नोलॉजी साथ आती है ये एक पैकेज के साथ आती है, ठीक है, और ये जब पैकेज के साथ आती है तो इसके साथ एक साइड इफेक्ट होता है। लेकिन मैं एक बात आपको अली और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लोग अपनी तहजीब के साथ जुड़े रहते हैं ना, एक स्पेनिश आदमी के लिए बेस्ट जिंदगी ये है जब वो स्पेनिश तहजीब के साथ जुड़ा रहेगा। ईरानी के लिए बेस्ट ये जो अपनी तहजीब के साथ जुड़ा रहेगा। मेरे लिए बेस्ट ये कि जब मैं अपनी जमीन की अपनी तहजीब के साथ जुड़ा रहूंगा। जब आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं ना, जी जी, चाहे वो ऐप रास्ता दिखाने की ऐप है, जी जी, तो आप वो ऐप डाउनलोड नहीं करते, आप पूरी तहजीब डाउनलोड करते हैं। इस तरीके से अब इसके अंदर जो इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन ऐप्स अवेलेबल हैं। 3 मिलियन। जब एप्पल ने बनाया था तो 300 ऐप्स थी। अब ये जो 3 मिलियन ऐप्स अवेलेबल हैं, ये 30 मिलियन डिफरेंट तहजीबें जो हैं वो एक्चुअली मेरी ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। बिल्कुल सही। अब इसको पता नहीं, हम समझते हैं हमें जब एक घर के अंदर देखें, फर्ज करें आपने एक कार्टून डाउनलोड किया, अब उस कार्टून के अंदर नजर आ रहा है इट्स इज जॉन, जॉन हैज 2 फादर्स जी, जॉन हैज 2 फादर्स। तो अब एक्चुअली एक पूरी तहजीब के अंदर एक होमोसेक्सुअलिटी के रिलेशनशिप का पूरा सिस्टम यहां डाउनलोड हो गया है। और ये 3 साल के बच्चे के अंदर ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। इसी तरह आपको नहीं पता कि नीचे जो लोगो लगा हुआ है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप तो यानी ज़ाहिर है आपका नैरेटिव बिल्डिंग आपका काम है, तो आप जानते हैं कि नैरेटिव किस तरीके से सटल वे से डेवलप, कलर से कैसे, कलर्स आपको आपके ऊपर क्या शख्सियत पे असरअंदाज हो रहे हैं। इसलिए अब अगर हम समझते हैं कि जदीद, मैं ये नहीं कह रहा फिर आप ऊँटों पे सवार करना शुरू करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। जो जितनी सहूलतें हैं उनको इस्तेमाल करें, लेकिन जितना हम अपने बाहर के ऊपर मेहनत कर रहे हैं ना, कम से कम उतनी मेहनत अपने अंदर भी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे एक दोस्त हैं, वो अल्कोहलिक है। वो कहते हैं यार शराब मैं ना रोज़ाना पी जाती है मुझसे, अगर ना पीना तो मुझे नींद नहीं आती। वो मेरे एक और दोस्त हैं, वो पुराने उससे भी ज़्यादा शराबी हैं। वो कहते हैं कि यार तुम मुझे ना कोई तरीका बताओ, मैं ना चाहता हूँ कि मैं ना इससे जान छुड़ाऊँ। वो बस कहता है यार कोई ऐसी मुझे तरीका बताओ कि मुझे क्रेविंग कम हो। तो इसका कोई है सोल्यूशन आपके पास? देखिए, दुनिया में जितनी भी आदत है ना जी, उनको हटाने का एक ही तरीका है। दुनिया में एक ही तरीका है आदत को हटाने का। जी जी। जो तो इसका मेडिकल एस्पेक्ट है वो एक अलग है कि आपने अल्कोहल की वजह से आपके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ गई हैं उनको आखिर रिप्लेस कैसे करना है। ठीक है ना, बॉडी के अंदर चेंजेस आती है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो बॉडी की नीड बन जाती है। ज़ाहिर कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब उन रिसेप्टर्स पर जब तक उस तरह की कोई चीज नहीं लगेगी तो कुछ अरसा नींद नहीं आएगी, ज़ाहिर है। अच्छा, लेकिन यह है कि ये जितनी चीजें जो ड्रग्स है ना, या जितनी भी आप कहना चाहिए जितने भी केमिकल्स जो हम लेते हैं बाहर से, तो ये जितने भी केमिकल हैं हमारी बॉडी इसके लिए बनी नहीं है। ठीक है, ये हमारी बॉडी की खुराक नहीं है। हमारी बॉडी को अल्कोहल नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को निकोटीन नहीं चाहिए, सही, हमारी बॉडी को हेश नहीं चाहिए। ये हमने खुद बाहर से इन्फ्यूज किया है और अंदर की मेटाबॉलिज्म को इस तरह डिस्टर्ब किया है कि अब वो हमारे उन रिसेप्टर्स को एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है ना। अब उसकी सब हो गई है। जैसे एक शख्स ने अपनी टांग कभी यूज ही नहीं की, वो टांग को यूं करके बांध के रखा और सारी जिंदगी बैसाखियों से चलता रहा। अब बैसाखी गिराएंगे ना तो वो नहीं चल सकेगा, हालांकि उसकी टांग बिल्कुल सही है, मौजूद है ना। अच्छा, इसी तरह तो ये जितनी भी सब्सटेंस यूज है ना, इसके अलावा जितनी भी आते हैं, मतलब आप कहें मैं सुबह नहीं उठता यार, मेरा दिल करता है यार मैं उठूं, लेकिन सुबह फिर मेरी आंख लग जाती है। अब ये कहें, दूसरी मेरी आदत ये है यार कि मैं ना रात को ना बहुत लेट खाना खाता हूं और मैं नहीं, तो उस सब का एक ही उसूल है, आदतें एक्चुअली हमारे दिमाग में वायरिंग हुई होती है, ठीक है, और हमारी कंपल्शन बन जाती है, यानी आप करने पर मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि आपके दिमाग का पैटर्न उस तरह से बना हुआ ना, जो आपको दिमाग कहेगा आप वैसे करेंगे जी। अच्छा, अब वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कुर्सी के ऊपर 10 कुर्सियां लगी हुई और 10 बंदे बैठे हुए, ये 10 बुरी आदतें हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि एक अच्छी आदत मैं इसमें डालूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा एक कुर्सी पर आप टिका लें अपना एक साइड, फिर आहिस्ता आहिस्ता धक्का देते देते यूं करेंगे तो एक बंदा वहां से गिर जाएगा और आप फिर आप दूसरा अच्छा बंदा बना लें। सही। तो जिस बंदे ने भी अपनी आदतें हटानी है ना, वो एक लिस्ट बनाए, ठीक है। तो जो अपनी आदत वो सबसे समझता है कि सबसे आसान है हटानी, जी जी, वहां से शुरू करे, ठीक है, ठीक है। जैसे भी शराबरी, और उसमें ये करे कि अब देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा कोई फार्मूला बताने लगा हूं एकदम, देखिए इसका यह है, आपको अपने ऊपर शुरू में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ओके, as simple as that। सही है, कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती करने के लिए अपनी मोटिवेशन कैसे हासिल करें, पहले कागज पर लिखें कि यार मैं शराब क्यों छोड़ना चाहता हूं, ठीक है।
اگر میں نے پیتا رہوں تو اس کا کیا ہے, اگر نہ پیتا رہوں تو کیا ہے. تو آپ پہلے کوگنیٹیولی اس کے بارے میں کنونسڈ ہوں کہ یار یہ میں نے چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے میں لکھوں کہ یار صبح اٹھنا ٹھیک نہیں ہے, صبح اٹھتے سارا دن سست رہتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر میں جانتا ہوں کہ وہ والا ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو. تو آپ کوگنیٹیولی پہلے کنونس ہوں کہ یار یہ میں نے کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ ایک بسم اللہ کر کے فیصلہ کر دیں کہ آج میں صبح 6 بجے اٹھوں گا. ٹھیک ہے. اپنے اوپر گارڈ لگا دیں, ایک الارم لگا لیں, دوسرا الارم لگا لیں, تیسرا اپنی بیوی کو کہہ دیں نہ اٹھو تو میرے اوپر پانی ڈال دینا, میرے اوپر پانی ڈال دینا. یعنی اپنے اوپر ایک زبردستی کرے. پہلی دفعہ آپ کریں گے آپ کو بہت تکلیف ہوگی, دوسری دفعہ کریں گے پھر آپ کو پرابلم ہوگا, آپ دیکھیں گا 2-3 دفعہ پھر آپ زبردستی کرتے رہیں گے, پھر ایک زبردستی کرتے رہیں گے. لیکن ہیومن سائیکالوجی کو جب اسٹڈی کیا گیا ہے, جو چیز آپ تقریباً 40 دن کریں نا, 40 دن, ٹھیک ہے, تو آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. 40 کا فگر کیوں ہے؟ جی ماں کی پیٹ کے اندر جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ 40 دنوں کے سیگمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, اوکے. اور آپ نے سنا ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, چلا کاٹنے. چلا, جی, چلا کا مطلب 40 ڈیز ہیں. جی. تو سم ہاؤ اگر ہم تو مہینہ کہہ سکتے ہیں, آپ دیکھو وہ تو ایک 40 ڈیز کی کوئی ریزن ہوگی, لیکن تقریباً 1 مہینہ آپ اپنے پہ زبردستی کرتے رہیں, اور جیسے ہی آپ پہلا ہفتہ گزاریں گے وہ کم ہو جائے گا پریشر, پھر کم ہو جائے گا پریشر, پھر آپ ایک کرسی پر آپ نے نیا بندہ بٹھا دیا, آپ کی ری وائرنگ ہو گئی ہے. صحیح ہے. میں نے خود ایک طریقہ نکالا ہے, جاوید's میتھڈ آف کنٹینیوس موٹیویشن ٹو چینج اے ہیبٹ. اس کا کوئی ایبریویشن بنا لیں آپ. وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ہیلدی جرمانے لگا دیں. اچھا, اگر میں نے آج شراب پی تو میں رات کو نا 100 نفل پڑھ کے سوؤں گا. اچھا, انشاءاللہ 200 نفلوں میں شراب چھٹ جائے گی آپ کی. ایسا نہ ہو کہ نفل بھی جائیں اور شراب بندہ اور پی. اور اگر میں نے شراب پی تو میں 50 پش اپ نکالوں گا. ٹھیک ہے. جم میں جا کے, یہ اپنے اوپر پابندی لگا لیں. اب یہ نا, یہ سارے کیا ہیں, ہیلدی جرمانے ہیں نا, ہیلدی جرمانے ہیں. جی. اگر میں نے یہ کیا تو اگلے دن میں یتیم خانے میں جا کر 50 یتیموں کو میں ان کو کھانا کھلاؤں, شرٹ دے کے آؤں گا یا جوڑا دے کے آؤں گا. یعنی ہیلدی اپنے اوپر جرمانہ لگائیں. فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے مجھے. اس کے علاوہ میں معافی چاہتا ہوں, پھر کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اچھا, عادات کو ہٹانے کا طریقہ اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر ہے ہی نہیں. اگر آپ اپنے اوپر زبردستی نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اس کو ریکنڈیشننگ کہتے ہیں, آپ ریکنڈیشننگ نہیں کریں گے آپ کی عادت نہیں ٹھیک ہوگی. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں گے, یکدم چھوڑنی پڑے گی؟ نہیں, آپ کو بیسیکلی جو تو اس طرح کی ڈینجرس چیز ہے نا, اس کو تو اسٹریٹ اوے چھوڑنا پڑے گا رائٹ ناؤ. ہاں, یہ میں نے نہیں پینی یہ. اور ساتھ پتہ کیا کہنا ہے, پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے, کیونکہ آپ کو سونے کے لیے پھر کوئی بینزوڈازیپین چاہیے ہوگی, کوئی وائٹامن B12 چاہیے ہوں گے, آپ کی ڈیفیشنسی ہوگی یا وہ چاہیے. دیکھیے, میں آپ کو نا یہ پوری ذمہ داری سے ایک سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہتا ہوں, تھوڑا تھوڑا چھوڑنے کا مطلب چھوڑنا نہیں ہوتا, وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. چھوڑنے کے لیے جس اسٹرینتھ اور موٹیویشن کی ضرورت ہے وہ یہی چیز ہے. اسی لیے تو لوگ سارے چھوڑتے نہیں ہیں, اسی لیے تو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. ورنہ یہ بات آج سے 4000 سال پہلے سارٹ آؤٹ نہ ہو چکی ہوتی. کسی نے سقراط سے بھی یہ سوال پوچھا ہوگا, کسی نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوالات پوچھے گئے تھے بالکل. تو لیکن یہ کہ جو بندہ, میں نے شروع میں اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہا, جو بندہ اپنے اوپر محنت نہیں کرنا چاہتا, دیکھیں نا, آپ اس کمرے پر محنت نہ کریں. یہ جتنا عالیشان کمرہ بنا ہوا ہے, تھوڑی دیر بعد یہاں مٹی ہوگی, یہاں ٹڈیاں پھر رہی ہوں گی, یہاں یہ سب کچھ. برائیوں کے لیے تو محنت نہیں کرنی پڑتی, محنت تو اچھائیوں کے لیے کرنی پڑتی. آپ نے گھر میں خرگوش اور ہرن پالنے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ محنت نہ کریں تو بچھو تو خود ہی آ جائیں گے, سانپ تو خود ہی آ جائیں گے. سانپوں کو پالنے کے لیے کہیں سے آپ کو لانے تو نہیں پڑتے. اسی طرح گندم اگانے کے لیے, گلاب اگانے کے لیے کیاری پہ محنت کرنی پڑتی ہے, جھاڑیاں اگانے کے لیے تو محنت نہیں کرنی پڑتی, جھاڑیاں تو خود آ جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو صفائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, گندگی کے لیے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا نا آپ کا احسان ہے ہماری قوم پہ کہ پیرنٹنگ پہ نا بہت ساری, شاید آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہو, لیکن ایک کمپلیٹ لائف ہے نا, کوڈ آف لائف جو پیرنٹنگ کا, وہ آپ کے نام سے ہی منسوب ہوتا ہے کہ آپ نے سکھایا پیرنٹس کو کہ آپ نے گرومنگ کیسے کرنی ہے, بچے کیسے آپ نے رکھنے ہیں, آپ نے ان کو سمجھانا کیسے ہے, غصہ نہیں کرنا. اور ایک آپ کا جملہ وہ بڑا خوبصورت رہا, ہمیشہ سے وائرل بھی ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے مجھ پہ غصہ نہیں کرنا, اور اس کا اپنا انداز, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اچھا, اس میں اب سوال میرا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو ساری ابھی آپ پچھلے کئی سو سال سے یا کئی سالوں سے یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, کوئی آپ کو اس میں کوئی چینج نظر آیا ہے, کوئی بہت آئی ہے؟ بہت آیا ہے. بہت. مسئلہ یہ ہے,
समंदर है ना जी तो समंदर में नीला पानी डाला गया है तो यानी कुछ और पानी रंग का डाला गया है तो वो एकदम डाइल्यूट हो तो पता नहीं चल रहा जी लेकिन जिस इंडिविजुअल के ऊपर फायदा हुआ उसको तो बहुत फायदा हुआ अभी मैं हम किरण फाउंडेशन है कराची में लियारी में और लियारी को बदलने वाली एक खातून है हमारी बहन सबीना खत्री आप उनको हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़ भी अभी दिया है और वहाँ मैं जब भी जाता हूँ उनके पास तो ऐसे मैं यानी अल्लाह ताला ने उनको क्या अल्लाह ने तौफीक दी है अच्छे बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक की वो बेगम है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लियारी के बच्चों के लिए वक्फ किया हुआ है और वहाँ उन्होंने एक स्कूल अडॉप्ट किया और वहाँ जाके तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप हमें वो ना इजाज़त दे दें कि हम वो आपका जो पेरेंटिंग का प्रोग्राम है वो अपनी माओं को सबको करवाएं अच्छा वहाँ उस स्कूल का उसूल है कि जो बच्चा दाखिल होता है उसकी माँ को भी दाखिल होना पड़ता है अच्छा ये पाकिस्तान का वाहिद मॉडल है कि माँ अगर दाखिल नहीं होगी तो बच्चा भी दाखिल नहीं होगा माँ अलबत्ता 4 दिन आएगी और बच्चे पूरे 6 दिन आएंगे और वो माँ की बाकायदा क्लासें वो कहते हैं जब तक हम घर की माँ को चेंज नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा और वो लियारी की माएँ हैं आप ठीक है तो वहाँ उन्होंने अभी मुझे कल ही उन्होंने वो मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी तो बड़ी स्क्रीन पर हमारा वो पेरेंटिंग का प्रोग्राम रन करती हैं और उनकी जो पूरा सेशन आता है उनको माएँ फिर इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आप कराची आके जो उनको सर्टिफिकेट देना है वो आप दें तो वहाँ उन ख़वातीन की बातें सुन के उनका फीडबैक सुन के उनके घरों में क्या तब्दीलियाँ आई उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से किया मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ ये जो कोर्स मैंने डेवलप किया है ना इस कोर्स की बुनियाद मेरी अपनी गलतियां हैं इस कोर्स की बुनियाद वो बुनियादी पेरेंटिंग की गलतियां जो मुझसे सरजद हुई हैं सही जिसकी बुनियाद पर मुझे उनके नताइज को भुगतना पड़ा है और वो इतने खौफनाक नताइज बाज़ होते हैं कि जिसको सिर्फ वही जानता होगा जिस पे गुजर रही है मेरे लिए इसकी मोटिवेशन इसलिए है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी में मैंने गलतियाँ की हैं वो कोई गलती ना करे और उसको फिर मैंने रिसर्च किया पढ़ा अब तो एक लगता है मेरी ज़िंदगी का मकसद ही बस एक ही है कि 3 करोड़ 75 लाख माएँ हैं पूरे पाकिस्तान में उन 3 करोड़ 75 लाख माओं को ये 20 घंटे का एक प्रोग्राम समझाना है और अगर उनको ये समझ में आ जाए और घर में अप्लाई करना शुरू हो जाए तो इसका वो फल जो है वो काटना शुरू कर देगी दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और हमारी इस पेरेंटिंग के सिलसिले में आप इस एक फ़िक्रे को सुनिए गौर से और इस फ़िक्रे को ना अपनी न्यूरॉन का एक हिस्सा अपनी फीलिंग का एक हिस्सा बनाइए और ये बात ना मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ अगर हम अपने बच्चों का बचपन ख़राब कर देंगे जी तो वो हमारा बुढ़ापा ख़राब कर देंगे आपके बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है जो आपने बाकी ज़िंदगी के अंदर अपने लिए यानी अपनी सहूलत के लिए आपने करना और मुझे जब इस बात का पता लगता है तो मेरा सर पीटने को दिल चाहता है कि ये जिसको हम बचपना कहते हैं ना ये तकरीबन 6 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है और ये वो टाइम होता है कि जब जैसे किसी की एक शादी हुई 21 साल के लड़के की 20 साल की लड़की के साथ और उनका बेटा पैदा हो अभी वो अपने कैरियर की स्ट्रगल में ही होते हैं जी और उनका ये ख्याल होता है कि इन बच्चों के लिए हम जितना पैसा ज़्यादा कमाएंगे ना उतना ज़्यादा मैं इसके लिए मैंने इसी के लिए मैं दिन को काम करता हूँ इसी के लिए और उस वक्त बच्चे को ये चीज़ें चाहिए नहीं होती उस वक्त आपके बच्चे को आपका अपना आप चाहिए होता है उस बच्चे को कीमती डिजिटल खिलौने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए आपका नाक खिलौना है उसके लिए आपकी ऐनक खिलौना है आपका साथ उसको गुद 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 करना ये खिलौना है उसके आपके साथ बैठकर कहानियां सुनना ये उसका खिलौना देखिए ना मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंक्रीट आप बच्चे को बता सकते हैं ये बोतल है बच्चा समझ जाएगा ये ऐनक है ये समझ जाएगा कुछ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर इंसान की पूरी कदरें बनती हैं उसकी पूरा उसका वैल्यू सिस्टम बनता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ये है लालच अब लालच बच्चे को कैसे बताया जाए अच्छा इसी तरह मुरव्वत इसी तरह अमन इसी तरह प्यार इसी तरह नफरत इसी तरह कीना इसी तरह बुग़्ज़ उसके लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कुरान को कहानियों की किताब का है कससुल कुरान जी कुरान के अंदर कहानियां बयान की गई हैं और नबी ने वो कहानियां बयान की हैं और उन कहानी अब सूरह यूसुफ को आप पढ़ें तो सूरह यूसुफ के अंदर पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं सोशल रिलेशंस के प्रिंसिपल क्या हैं बिजनेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं लोगों के अंदर किस तरह नफरत कीना आ जाता है रिश्तेदारियों को कैसे करना है बाई स्टोरी टेलिंग तो लिहाजा आपने स्टोरी एक बनाई कि एक कुत्ता था उस कुत्ते के मुंह में गोश्त का टुकड़ा था वो जा रहा था उसने नदी से गुजरा तो उसको अपना अक्स नजर आया तो उसने देखा कि ये तो एक और कुत्ता है तो उसने कहा ये तो मुझसे कमजोर लग रहा है इससे मैं ये वाला भी छीन लूं तो उसने उस पर भौंका तो उसका भी नीचे गिर गया
تو یہ لالچ بری بلا ہے. اچھا آپ کے خیال میں یہ کسی بندے نے ایم ہی بنا دی بس لالچ کے اچھا پھر کسی دن آپ کے ایک بیٹے نے آپ کو منہ سے کہتے ہوئے سنا او یار یہ 2 کیک تم نے کھا لیے, تیسرا پھر تو یہ لالچ نہیں کرنا چاہیے. اب اس نے کوریلیٹ کرے گا اس کے ساتھ, اچھا یہ ایک سے زیادہ لینے کا نام لالچ ہے, ضرورت سے زیادہ لینے کا. پھر آہستہ آہستہ اس کا ایک ورڈ ویو لالچ کے بارے میں بننا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا یہ جو ایبسٹریکٹ علم ہے نا, یہ انسان کی ویلیو سسٹم کو بناتا ہے. ایسے کانسیپٹس جن کو ہم جو ایک کنکریٹ کانسیپٹس نہیں ہے, کنکریٹ کانسیپٹ نہیں ہے, ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں. اچھا ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو بتانے کے لیے والد کی گود میں, امی کی گود میں, دادی اماں کی رضائی میں بکل مار کے وہ جو لرن کیا جا رہا ہے, وہ سٹوریز جو ہے نا, وہ ایکچولی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بناتی ہیں, جس سے کسی خاندان کی ویلیو سسٹم بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن سر دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو ماں ہے, باپ ہے, ایون دادی ہے, دادی تو ڈراموں میں مصروف ہے, باپ اپنے میسیجز میں اور اپنے آفس کی, ماں ریلوں میں مصروف ہے, وہ بھی ڈراموں میں مصروف ہے. اور بچہ اب رو رہا ہے تو بچے کو کہتے ہیں یار یہ موبائل بھی پڑھاؤ, کہ اپنی جان چھوڑو. بچہ تنگ کر رہا ہے, بچہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کھیلو, میرے ساتھ یہ کرو, وہ کہتا ہے یار میں تھکا ہوا آیا ہوں, یہ موبائل پھاڑ تے میری جان چھاڑ. دیکھیں جی بچے یہ ہے پریکٹیکل. آپ بات جو کر رہے ہیں وہ آئیڈیلزم ہے, جو میں بات کر رہا ہوں وہ پریکٹیکل ہے. تو دیکھیے نا سر, یہ کہ بچے کو تو ابو امی چاہیے, اگر آپ اس کو ابو امی نہیں دیں گے تو وہ اس کو اپنا ابو امی بنا لے گا. از ایز سمپل ایز دیٹ. صحیح ہے. وہ جو اس نے ابو سے سیکھنا تھا وہ اس سے سیکھے گا. اب یہ جو چیز ہے نا, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو ولگر بنانا ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو نیک بنانا ہے. اس کا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ یہ آپ کی ہیومن سائیکالوجی کو پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ نے اس میں سورہ رحمان سنی جی, اور 2-3 منٹ سنتے رہے جی, تو شام تک 4-5 دفعہ سورہ رحمان آنی شروع ہو جائے گی. تو مقصد آپ کو نیک بنانا نہیں ہے, جو پیچھے ایک چھوٹا سا لوگو لگا ہوا ہے جی, جس کے ذریعے سے آپ کی مائنڈ کی کنڈیشننگ ہو رہی ہے, وہ پرپز ہے. یہ پرپز سورہ رحمان کے ذریعے بھی حل وہ کرا سکتے ہیں. لیکن ایک ناچتی ہوئی لڑکی آپ نے دیکھ لی نیم برہنا, اور آپ نے ذرا غور سے دیکھ لیا تو انشاءاللہ شام تک 15 ناچتی ہوئی لڑکیاں آ جائیں گی. مقصد آپ کو پھر بھی انہوں نے بد اخلاق کرنا نہیں ہے. مقصد تو وہ لوگوں پہنچانا ہے, وہ چاہے آپ کی سائیکالوجی ہے کہ آپ سورہ رحمان کے ذریعے سیکھ رہے ہیں, ایک بندے کی نشانی ہے وہ ڈانسر کے ذریعے سیکھ رہا ہے, تو وہ اندر انفیوز ہوتے جا رہی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ آپ کے ابا, اگر آپ یعنی میں اپنے بچوں کا ابا نہیں بننا چاہتا تو وہ کہے گا کوئی بات نہیں, یہ اس کا ابا کا آلٹرنیٹ ہوگا. تو پھر اب وہ رسپیکٹ کس کی کرے گا؟ اپنے ابا کی. اچھا وہ میں گیم دیکھ رہا تھا, وہ کارٹون دیکھ رہا تھا میں, مجھے دکھا رہے تھے آپ کے کزن, وہ کارٹون سے بھی کچھ آپ کی گرومنگ کر سکتے ہیں بچوں کی, آپ اس طرح کے کچھ کریکٹر سر یہ ڈیولپمنٹ کے جو کارٹونز ہیں یا کوئی ایسی پوئمز ہیں. ہیومن نیچر آف لرننگ, دیکھیں جی میں اس کا شاگرد اسٹوڈنٹ ہوں جی, کوگنیٹو سائیکالوجی کا. میں کالج آف فزیشین سرجن میں کوگنیٹو سائیکالوجی سینئر پروفیسرز کو پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں ایز اے لے مین بات نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, اپنی اس فیلڈ کی ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہیومن مائنڈ کا جو لرننگ کا پیٹرن ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے سیکھتا ہے. اوکے. اس کو نیچر چاہیے سیکھنے کے لیے, اس کو کنٹیکسچوئل لرننگ چاہیے, ایسی لرننگ چاہیے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. صحیح ہے. اس کی بنیاد پر آپ ایک بندے کو جانڈس پڑھانا چاہتے ہیں نا, تو آپ پورا لکھ کے, جیسے میڈیکل کالج میں پورا جانڈس پڑھا دیں, کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, بلیروبن کتنا ہو جائے تو جانڈس ہوتا ہے, کتنی قسم کا جانڈس ہوتا ہے, کیا علاج ہے, کیا ڈائگنوسس ہے. یہ ہے. اس کی بجائے ایک مریض جس کو جانڈس ہوا ہے, آپ وہاں سے شروع کر کے کہ دیکھو یہ بندہ جس کی آنکھیں پیلی ہیں جی, اور یہ آنکھیں پیلی ہونے کی یہ وجہ ہے کہ بلیروبن اکٹھا ہو کے یہاں ہو گیا ہے, 2 ملی گرام سے زیادہ ہوگا تو آنکھیں پیلی ہوتی ہیں, ورنہ نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور پیشاب کا رنگ یہ ہوتا ہے. اور اچھا اب آپ مریض پہ پڑھا دیں گے, اس کو ہم کنٹیکسچوئل لرننگ کہتے ہیں. انسان لرن کر سکتا ہے کارٹونوں سے, مگر وہ کنٹیکسچوئل لرننگ نہیں ہوتی. کنٹیکسچوئل لرننگ اور نان کنٹیکسچوئل لرننگ کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کے پاس بٹوا ہے اس وقت؟ نہیں میرے پاس کوئی بٹوا ہے. عورتوں کا بیگ آپ نے دیکھا؟ ہاں یہ بٹوا ہے. اب تو فرض کریں یہ بٹوا ہے آپ کے پاس, یہ بٹوا ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر کہ کوئی میں نے جیب سے کچھ چیز نکالی, فار ایگزامپل کوئی سکہ یا کچھ, جی فار ایگزامپل یہ میں نے اپنی جیب سے نکالا جی, اور میں نے کہا کہ یار یہ علی سنبھال کے رکھ لو تو کہا. اچھا اب جیسے عورتوں کا بیگ ہوتا ہے نا, جی جی, اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ اس کو اندر پھینک دیں اندر جی, اور اس کے بعد بند کر دیں. میں کہوں یار وہ دینا کارڈ, اب آپ جلدی سے دیکھو کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا, اتنے میں وقت گزر جائے. ایک ہے کہ آپ نے کارڈوں کا ایک الگ خانہ بنایا ہے. جی جی. اچھا اس خانہ کو کہتے ہیں, تھینک یو بیٹا, اس کو کہتے ہیں اسکیما. اچھا اسکیما.
ब्रेन में जो इल्म के इकट्ठा होने का सद उसकी माँ कहते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपने नॉलेज को कंटेक्चुअल डाला है, तो ऐसा है कि उस खाने में डाला है। मैंने ये पढ़ाया कि अगर एक लड़की आए जिसकी उम्र 20 साल के करीब हो और वो शादीशुदा हो और उसको अचानक बैठे बैठे दर्द हो शदीद, और इस जगह पे दर्द हो, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जिसकी फौरी ऑपरेशन की जरूरत है। सही। अच्छा, जो कॉमनेस्ट बीमारी जिसमें यहां दर्द होता है वो अपेंडिसाइटिस है। अगर मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको पढ़ाया हुआ है, तो जब मैं कहता हूं निकाल बटुआ, इसका मतलब ये कि मैं अब मुझे जरूरत है ना उस इल्म की। जब वो बच्ची रात के 2 बजे आएगी ना कि मेरे यहां दर्द हो रहा है, जिसने उस नॉलेज को कंटेक्चुअल डाला होगा वो कहेगा ये मैरिजेबल एज में है, तो इसको एक टॉपिक हो सकती है। जिसने वैसे डाला हुआ है ना, वो कहेगा इसको टीका लगाओ, सवेरे देख लेंगे, और वो लड़की फौत हो सकती है सुबह, क्योंकि उसको वजह, क्योंकि नॉलेज कंटेक्चुअल नहीं होता। तो ये जो कार्टूनों से नॉलेज है या इन चीजों से नॉलेज, मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल बेफायदा है, ये एक सिनर्जी जरूर क्रिएट करती है, लेकिन असल इल्म वो है जो इंसानों के साथ, इंसानों से और फितरत से आपने सीखा है, कंटेक्स्ट के साथ सीखा है। बिल्कुल ठीक। नॉन कंटेक्चुअल इल्म आपके अंदर ना उस तरीके की शिद्दत पैदा करता है और ना बवक्त जरूरत वो इल्म आपके पास अवेलेबल होता है। हाँ, आप तकरीर अच्छी कर सकते हैं, आप बातें अच्छी कर सकते हैं, सही, आर्गुमेंटेटिव आप हो सकते हैं, तो ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस 1-2 सवाल रह गए मेरे। आप नई नई लर्निंग जो है ना वो करते रहते हैं, आपका बड़ा शौक मैंने देखा है, नई किताब, नए लीडर्स को आप सर्च करते रहते हैं, मुख्तलिफ आप जो इंटरनेशनल जो लीडरशिप है उस पर भी आपकी गहरी नज़र है। पिछले दिनों आपने इब्राहिम तरोड़े को इंट्रोड्यूस करवाया पूरे पाकिस्तान में। जब आपने वीडियो बनाई तो फिर लोगों ने उस पर रिसर्च शुरू कर दी, उस पर वीलॉग्स बनने शुरू हो गए। लेकिन चलें, एक आपकी वजह से एक अच्छा कंटेंट जो है वो माशरे में चला गया, मैंने भी वो देखा। तो ये कहाँ से ढूंढते हैं आप नई नई ये सारी चीज़ें? बस अल्लाह का शुक्र है, और मसला आपकी भी आदत है कि पढ़ने का शुरू से ना एक पैटर्न बनता है ना दिमाग के अंदर। तो बस हमारा बचपन से ना वो पैटर्न बना हुआ है। तो और वो फिर कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, कोई आर्टिकल पढ़ने वाला आ जाता है, फिर जो चीज़ ज़्यादा फिर इंटरेस्टिंग होती है आप उसको ज़्यादा डीप डाउन जाना शुरू करते हैं। मसलन रात में सफ़र कर रहा था ना, तो मेरे साथ एक बैठे जो भाई, उन्होंने कहा कि वो जो मनी एक्सचेंजर हमारा अजीज़ है ना, वो बता रहा था कि लोग ईरानी करेंसी बड़ी ले रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैं भी ले लेता हूँ, कितने की आती है? उन्होंने कहा आज रेट तो 4000 है, लेकिन वो ब्लैक में 8000 की मिल रही है। अच्छा, वो बात करके चुप हो गए। मैंने आराम से पीछे बैठ के ना आर्टिकल्स खोले और 1 घंटे के अंदर ना मुझे उसके बारे में सारी कहानी समझ में आ गई कि क्या करना है। ठीक है। तो ये कि आप थोड़ा सा जरा यानी स्केप्टिकल रहें, तशकीक में रहें, कोई चीज़ नई आपको मिले तो आप उसके बारे में पढ़ें, तो वो फिर वो एक इंटरेस्ट डेवलप। वैसे आजकल की आपकी अगर मैं लर्निंग्स देखूं, क्योंकि आप ना मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लर्निंग करते रहते हैं, आजकल क्या है आपकी किताबों का सोर्स या लर्निंग वाली? जी, एक तो मैं कुछ किताबों को ना अरसर नौ पढ़ रहा हूँ। वो इसलिए कि मुझे अब ये समझ में आया है कि अब अगर मुझे मेरा बेटा को हो ना छोटा पैदा, अभी तो यानी मेरा चलो पोता हो सकता है, तो उसे कहें कि मुझे ऑप्शन दें कि इसको क्या बनाना है, मैं कहूँगा इसको फिलॉसफी पढ़ाएं। क्योंकि फिलॉसफी क्या पढ़ाएं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ अरसे के बाद ये जो फिलोसोफर है ना, ये मटीरियल साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने गाड़ी कार बनानी है जो कि मैन्ड नहीं, नॉन मैन कार है, जो चल रही है दुनिया के अंदर, चल रही है। उस कार को एक एल्गोरिदम दिया हुआ है, जाहिर है उस एल्गोरिदम के तहत चल रही है ना। आगे एक बकरी आई है और एक तरफ एक 3-4 साल का बच्चा आया है। अब इसके पास ऑप्शन है कि या तो ये बकरी को मार दे या बच्चे को मार दे, बिल्कुल बचाने के लिए दोनों को एक बचा सकती है। अगर इसके पास एल्गोरिदम ये है कि कौन सी चीज यूजफुल है, तो एकदम कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके बकरी की खाल से जूते बन सकते हैं, बकरी दूध देती है, बकरी का गोश्त खाया भी जा सकता है। अच्छा, इसको कंपेयर करें उस बच्चे के साथ, ना तो उसकी खाल के जूते बन सकते हैं, ना उसके गोश्त को खाया जा सकता है, और वो दूध भी नहीं देता, तो बच्चा आपको मार देना चाहिए ना। लेकिन इमोशनल वैल्यू बच्चे की ज्यादा है। ये तो कार के नजदीक तो नहीं है ना? कार के नजदीक नहीं है। तो कार के इस प्रोग्राम बनाने के लिए अगर साथ उन्होंने एक फिलोसोफर ना डाला और उस बंदे को डाला जो कि सेठ ने, जो सेठ ही होते हैं ना इन्वेस्टर्स, जिन्होंने चीज को बेचने के लिए चीजों को करना है। ये जितनी भी इजादात दुनिया में, इवन वैक्सीन को भी आप देख लें, ये इजादात एक्चुअली इंसानियत को बचाने के लिए नहीं होती। ये देखा जाता है किस पे प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है। दुनिया प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही है ना। सही है। अब इस प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर करने के लिए जब तक इस एल्गोरिदम में फिलॉसफी को नहीं डाला जाएगा, जब तक आप
हायर साइंसेस को इसके अंदर नहीं डालेंगे, फिलॉसफी को नहीं डालेंगे, तो अब तो लोग ढूंढते फिरेंगे। एक लेजिस्लेशन बन जाएगी कि इस जगह का एल्गोरिथम बनाने के लिए भाईजान फिलोसोफर कौन है आपके पास, आपके पास इमोशनल थिंकर कौन है, तो कुछ अरसे बाद इनकी जरूरत पड़ जाएगी हमसे। इसका मतलब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, वो तमाम चीजें जो कि जिसका ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी से है, ह्यूमन साइकोलॉजी के इमोशनैलिटी के साथ है, वैल्यू सिस्टम के साथ है, इस इल्म के माहिरीन जो है ना वो हमें चाहिए होंगे। डॉक्टर साहब उलट बात कर रहे हैं आप। इस वक्त आपको अंदाज़ा होगा ये ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में बंद हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि अमेरिका के अंदर जो प्रोग्रामर थे ना जी, उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हालांकि किसी जमाने में प्रोग्रामर तो सबसे ज्यादा, मेरा बेटा खुद एक अमेरिकन कंपनी में काम करता है और जो कि पाकिस्तान में रह के करता है ऑनलाइन, मोहम्मद छोटा जो है, और वो उसका शाम 7 बजे से लेकर 3 बजे तक काम होता है। उसको वो चूंकि प्रोग्रामर है, उसके पास जो टास्क आता है वो एक एजेंट को टास्क दे देता है, एजेंट काम करता है, वो आराम से बैठ के अपना कुछ और पढ़ रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। यानी सबसे अहम काम तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था ना, तो उसका भी गया। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने जा रही है। असल काम तो यही था ना, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने जा रही है। तो आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल है, बंद हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं जो मटेरियल साइंस के डिपार्टमेंट हैं वो उससे ज्यादा बेरोजगार होने जा रहे हैं, और कुछ अरसे के बाद फिर जरूरत पड़ेगी हमें, जब लोगों को ये ख्याल आएगा कि हमारे घर के अंदर पैदा होने वाले बच्चे नफ्सियाती मरीज पैदा हो जी जी, फिर उनको ख्याल आएगा कि इनको संभालने वाला कौन होगा। तो हमेशा लोग हम देर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये है कि जो हमारे फिलोसफर्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लोग हैं, राइटर्स हैं, इवन ऑथर्स हैं, ये अपने आप को ना बड़े आउटडेटेड समझते हैं। ये कहते हैं हमारे पास यार ना कोई जॉब है। आप देखते हैं इनके जो हालात हैं फाइनेंशियली वो भी कोई अच्छे नहीं होते। तो हो सकता है आपकी ये वाली बात सुन के अब ऐसा नहीं है, वो खुश हो जाएं। अब ऐसा नहीं है, दुनिया में वो डिमांड में आने वाले हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंटेंट राइटर कहलाते हैं जी। वो कंटेंट राइटिंग भी अब ये एआई कर देती है, वो अलग बात है। लेकिन मैंने एक दफा ये पोस्ट लगाई थी, लोगों ने बड़ा इस पे एतराज किया। मैंने कहा था ये कभी भी, जिसको हम कहते हैं ना अदब आलिया, उर्दू में लफ्ज है अदब आलिया, सुपीरियर लिटरेचर, वो कभी भी एआई नहीं लिख सकती, क्योंकि ये लफ्जों को जोड़ सकती है। सही, लफ्जों को जोड़कर वजन में शेर कह सकती है। लेकिन जो उसके पास है ना कि हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा ने खुद को थाम थाम लिया। अब दिले सितम ज़दा ने खुद को थाम लिया, दिले सितम ज़दा ने खुद को थाम थाम लिया। मुझे आप बताइए कि ये वाला जो फीलिंग है जी जी जी, ये इमोशनल फीलिंग कैसे कन्वे होगी? ये इमोशनल, क्योंकि जितनी भी ये मीडियम है ना, ये लैंग्वेज की मोहताज है। लैंग्वेज में है दुख तो दुख बयान करेंगे, लैंग्वेज में है सुख तो सुख बयान करेंगे। दुख और सुख के दरमियान क्या है जी? कई ऐसे जज्बे हैं जो ना दुख है ना सुख है, मगर है जी जी जी। तो इनके लिए लफ्ज ही नहीं इजाद हुआ, तो इसके लिए फिर हमें चाहिए ना एक ऐसी चीज जो लफ्जों से बियॉन्ड शायरी क्रिएट करती। अब देखें एक शेर सुने जी। शेर ये है कि कमरा खोला तो आंख भर आई, ये जो खुशबू है जिस्म थी पहले। मुझे बताएं इस फीलिंग को जी 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 कौन सी मटेरियल चीज एक्सप्लेन करेगी? ये जो खुशबू है जिस्म थी पहले। सही। अब ये जो लिटरेचर करेगा ना, ये हमें एक बेफायदा सी चीज लगती है कि एक बूढ़ा सा आदमी बैठ के हमें शेर कह रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं। जी जी जी। मगर ये इंसानी खसलत को बनाती है लिटरेचर, और असल में इंसान ही है जो बेनिफिशियरी है इन तमाम चीजों का। बिल्कुल सही। बेनिफिशियरी मतलब जो खाने वाला है उसका ही मैदा खराब हो तो इन पकवानों का फायदा क्या है? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो कौन बेनिफिशियरी होगा इन तमाम चीजों का? बिल्कुल सही है। तो बहरहाल बातें तो हो सकती हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। अच्छा, पूरी दुनिया ना इस वक्त जो है वो जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ और डिजिटलाइजेशन की तरफ, नॉन ह्यूमन हो रही है। और डॉक्टर साहब हमेशा से जैसे ट्राउट जो है ना वो ऑपोजिट चल रही है सारी इस सिमत के, तो डॉक्टर साहब भी ऑपोजिट फलसफा जो है वो बयान कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो फिलोसफर्स का है, साइकोलॉजिस्ट का है, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनका है। तो अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ कि हमारी भी लॉटरी इसी में लगेगी, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक इसी फील्ड से है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।